Hello students, today we will discuss our second chapter from the microeconomic, which is central problem of an economic. Here we will discuss all the problem related to the economics which was faces by a country when their resources are scarce and wants of the human beings are unlimited. So firstly we know about what is economic problem. As we know, wants of human being are unlimited but the means of satisfying these wants are scarce. सो ह्यूमन वांट्स की जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट इसको जो फुलफिल करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे स्केयर्स हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इकोनॉमिक टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज नो इकोनॉमिक पोजेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज. सो it's obviously which is not possible for any economic to produce each and everything for every individual of a country. किसी भी इकोनॉमिक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें बना सकें हर एक इंडिविजुअल के लिए, जिससे कि जो उनके वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो सकें. सो it become necessary for every economy therefore make a choice regarding the efficient use of the available resources of the economic like land, labor and capital. So there are the three things which are the resources of an economic, which are land, labor, capital. So these are the some resources which are used by an economic to fulfill or complete the wants of an individual. Second problem is the problem concerning the allocation of the resources to different users is called economic problem. सेकेंड हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, जो इकोनॉमिक है वो कैसे जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है. कितना जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिसोर्सेज जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे क्या होंगे, ये लोगों के जो है वांट्स को कंप्लीट कर पाएंगे. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम क्या समझते हैं, जो भी स्कैरिसिटी है, इट मीन्स रिसोर्सेज की जो भी स्कैरिसिटी है या फिर जो भी चॉइसेस हैं इकोनॉमिक्स में, दीज आर कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक. So what are the causes of economic problem here? The new question was arise. What are the causes? From which causes there arise economics problem? Then first one is unlimited wants, second one is limited or scarce means, and third one is alternative uses. These all 3 points we already know about, that unlimited wants of an individual make the problem of the economic, and second one is the limited or scarce means. What is the meaning of limited or scarce mean? Then there is demand is greater than the supply. So demand is higher but the supply is scarce or supply is limited. So the this problem became arise in the economic. And third one is the alternative uses. What is alternative uses? That there has resources are limited but their uses are unlimited. Like there has one commodity which is milk, and we preparing from the milk, what we preparing from the milk, we preparing cheese, we preparing ice cream, we preparing rasgulla. इट मीन्स मिल्क हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, बट उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो भी हैं कमोडिटीज़ जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि चीज़ है, आइसक्रीम है, रसगुल्ला. और एक टाइम पे किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं पता होता है कि जो कोई भी बायर है या फिर कोई भी कंज्यूमर है उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे बनाने हैं. तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरी इंडिविजुअल. तो ये क्या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम सब जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके जो वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाइड कर सकें. सो देयर इज़ द सेकेंड टॉपिक विच इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक. अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, पहले हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, देन वी सी व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक. रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, every economic must face these three central problem. These are what to produce, how to produce, for whom to produce. कोई भी कंट्री हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं विच आर द व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. इट मीन्स हमें प्रोड्यूस क्या करना है, देन हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, और थर्ड वन इज़ द हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या। व्हाट टू प्रोड्यूस means the first and foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so as to satisfy maximum wants of the people। तो पहला किसी भी इकोनॉमिक और किसी भी प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम यही होती है कि कौन से गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, हम उनके वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। Because the problem arises due to the fact that means are scarce in relation to their wants, because means are scarce and their wants are अनलिमिटेड। सो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे इसमें हमें ये दो चीज़ों में डिवाइड हो चुका है। उन दो चीज़ों में हमें पढ़ना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कैसे कैसे जो है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा और उनके वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। देन फर्स्ट वन इज़ द Firstly, the economic had decided what goods and services are produced. For instance, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee, and the capital good like machine, tractors। पहले तो इकोनॉमी जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो किस तरीके के गुड्स बनाएगी, कंज्यूमर गुड्स बनाएगी या फिर कैपिटल गुड्स बनाएगी। कंज्यूमर गुड्स में आपके जो डेली रिक्वायरमेंट के बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, जैसे कि शुगर है, क्लॉथ है, व्हीट है एंड घी है। एंड सेकेंड वन इज़ द कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो है जिससे हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, मशीन है, ट्रैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो चॉइस है वो कैसे जो है एक प्रोड्यूसर जो है इस चॉइस को कैसे जो है वो पॉसिबल बनाता है कि उसे किस टाइमिंग में किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। देन जब वॉर टाइमिंग होता है, जब वॉर टाइमिंग चलती रहती है, तो उस टाइमिंग में किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है राइफल्स की, गन्स की, टैंक्स की। सो उस टाइमिंग में जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करता है। एंड जब पीस टाइमिंग चलता रहता है तो उस टाइमिंग में जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रेड, बटर, घी, क्लॉथ्स यानी जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं ये उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ व्हेन इकोनॉमिक हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू प्रोड्यूस। जब कोई भी इकोनॉमी जो है वो एक डिसीजन ले लेता है कि उसे कौन से गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, इट मीन्स उन्हें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है और दे प्रोड्यूस कैपिटल गुड। व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड देन दे लेस प्रोड्यूस द कैपिटल good, and when they produce capital good they less प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड। जब वो कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो कंज्यूमर गुड का जो प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देते हैं, और जब वो कंज्यूमर गुड्स जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो कैपिटल गुड्स की जो है वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके पास क्या है, वो लिमिटेड है। तो वो जब एक गुड पे फोकस करेंगे तो दूसरे गुड्स के ऊपर उन्हें वो कम फोकस करेंगे उसको प्रोड्यूस करने में। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब सेकेंड प्रॉब्लम है, फर्स्टली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, उन्हें प्रोड्यूस कैसे करना है। देन सेकेंड वन इज़ द हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसे वो प्रोड्यूस कैसे करें। So the second main problem of an economy is how to produce goods or how to organize प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या आता है, इस प्रॉब्लम को जो है वो डील करने के लिए दो टेक्निक यूज़ होती हैं। दो टेक्निक यूज़ होती हैं प्रोडक्शन की। फर्स्ट वन इज़ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज़ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो लेबर है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपेयर टू द कैपिटल। एंड जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं, लेबर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं कैपिटल का। सो जो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये एक डेवलप्ड कंपनी में यूज़ होता है जहाँ पे जो है एम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। और ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। और इन दोनों टेक्निक को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। सो एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन is that which use the least amount of scarce resources to provide the same amount of output. In other words, the production would be undertake the minimum cost.
किसी भी प्रोड्यूसर का काम यही होता है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे क्या कर सके, मैक्सिमम आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सके। नाउ द थर्ड वन इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। डिसाइड हो गया हमें कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम ये किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज़ द रिच एंड सेकेंड वन इज़ द पुअर। हमें पता है कोई भी सोसाइटी जो है वो कैसे डिवाइडेड है, एक तो उनका सेक्टर है रिच और सेकेंड सेक्टर है उनका पुअर। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है, एक इकोनॉमिक जो है, अगर वो पुअर के लिए बनाती है, पुअर जो पुअर पीपल है जो कि ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, अगर वो उनके लिए उस प्रोडक्ट को बनाती है, तो ये क्या होता है, ये एक सोशल जस्टिस होता है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं। बट इसमें जो प्रोड्यूसर है उसको जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन सेकेंड अगर दूसरे साइड हम देखते हैं तो उसमें अगर हम रिच के लिए, जो रिच पीपल हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स को अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक में इन्वेस्ट कर सकता है। बट ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये अनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। अगर हमने जो भी है, अगर हमने पुअर के लिए जो है प्रोडक्ट बनाया जिससे कि वो इजीली अफोर्ड कर सकें, तो इसमें जो है हमें हर तरफ से लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पहले प्रोड्यूसर जो होता है उसकी प्रॉफिट क्या होती है, उसकी प्रॉफिट जो है वो लो होती है। देन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि जो जीडीपी का ग्रोथ है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो लो हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। सो हमें पता चल गया कि इकोनॉमिक में हमारा प्रॉब्लम क्या है, देन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। अब इस सेंट्रल प्रॉब्लम को हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पहले ही पढ़ रखा है। देन देयर आर द थ्री डिफरेंट इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज़ द market or free economic, second one is the centrally planned economic, and third one is the mixed economy. Then what is market economy? Market economy or free economy, where the regulation or where the control of the government is very low. ये ऐसी इकोनॉमिक होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है उसका जो भी रेगुलेशन होता है या फिर जो भी रूल या फिर स्ट्रिक्टनेस या कंट्रोल ऑफ डिग्री होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि दे व्हाट, हाउ और फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस डू टेक देयर डिसीजन। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। तो ये किस पे बेसिस होता है, जो भी मार्केट में जो है डिमांड किया जाता है, जिस अकॉर्डिंग डिमांड होता है उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं ये लोग सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है एक प्रोड्यूसर पे। Producer will choose to produce these goods, the price of which are relatively high because they are interested in maximizing their revenue. They will adopt the technique of production or prefer to those input the price of which are relatively low because they are interested in minimizing their cost of production. सो इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने पे फोकस करते हैं और जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करने पे फोकस करते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं कि ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। एंड मिक्स जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें आपकी कौन कौन सी जो है जो कौन कौन सी कंट्री हैं वो आती हैं, इसमें आती हैं आपके अमेरिका है, जैसे यूएस एंड यूके, बोथ आर द कंट्रीज विच केम इन द market economy. And second one is the centrally planned economic. So what do you mean by the centrally planned economic? Here the government control of the government is very high. यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक है ये कहाँ पे फॉलो होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है प्रोडक्शन को लेकर के। इवन गवर्नमेंट कैन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए
करना है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। सो ऑल डिसीजन आर टेकन विथ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। जब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उसकी जो पूरा जो कंट्रोल है वो प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, तो वो सबसे ज़्यादा किसका मैक्सिमाइजेशन देखेंगे, वो मैक्सिमाइजेशन देखेंगे सोशल वेलफेयर का। अनलाइक मार्केट इकोनॉमिक में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो प्रोड्यूसर का देखा जाता है, बट सेंट्रली जो प्लान्ड इकोनॉमिक है इसमें जो है वो किसका वेलफेयर देखा जाता है, इसमें सोशल वेलफेयर देखा जाता है। दिस इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्ट इज यूजुअली मोस्ट socially most useful in a situation of mass employment. For example, labor intensive technology will be preferred rather than the capital intensive टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम किस टेक्निक का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, और एम्प्लॉयड होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगा, और जो लोग जो है हंगर से और स्टारवेशन से जो सफ़र कर रहे हैं वो भी चीज़ें ख़त्म होगी। ये इसका जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्शन है हमारा वो कितना हो रहा है, उसका जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है, वो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है हम किस पे के बेस पे काम करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बेस पे काम करते हैं सोशल वेलफेयर के। Now third one is the mixed economy. And what is mixed economic? Here the control of the government is nor very high neither very low. यहाँ पे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ना ही वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका हाई है, ना ही ये बहुत ही ज़्यादा लो है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक का मतलब ही आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिसमें मार्केट इकोनॉमिक भी जो मार्केट इकोनॉमी भी इन्वॉल्व हो और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी इन्वॉल्व हो। यहाँ पे जो काम है वो दोनों बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने लिए भी क्या करते हैं, वो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन करते हैं, एंड सेकंड साइड एंड द अदर साइड वी ऑल्सो फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर भी, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि सोशल वेलफेयर के ऊपर भी काम किया जाता है। सो एग्जाम्पल इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू बोथ, प्रोड्यूसर are cloth or steel to maximize their profit but railways are the monopoly of the government। यहाँ पे देखिए दो टाइप के आपको प्रोड्यूसर मिले। फर्स्ट प्रोड्यूसर इज टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील। जो भी प्रोड्यूसर है जो क्लॉथ और स्टील का प्रोडक्शन करता है वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज द रेलवे सेक्टर क्या है आपका, गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसकी वजह से इसका जो पूरा का पूरा राइट है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस सर्विस एट नॉर्मल रेट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो रेलवे का जो भी सर्विस है वो एक नॉर्मल रेट पर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या है पुअर पीपल कैन ईजिली अफोर्ड टू बाय देम। तो जो पुअर पीपल हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि वो भी जो इसका टिकट्स हैं और या फिर वो भी जो सर्विस है उसको बाय कर सकें। सो नाउ वी कम टू द फोर्थ point of this chapter, which is the production possibility curve. And what do you mean by the production possibility curve? Production possibility curve is a curve showing alternative production possibility of two goods with given resources and technique of the production। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इसमें आपको क्या है, जो दो गुड्स हैं आप क्या कर सकते हैं, सेम रिसोर्सेज और सेम टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं, दो रिसोर्सेज को कंबाइन करके आप शो कर सकते हैं। So there is the production possibility curve is a curve showing different combination of two goods which we produce with the available resources of the assumption that resources are given resources are fully and efficiently utilized and techniques of production remains constant। यहाँ पे क्या करते हैं हम रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करते हैं, बट जो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, हमारी जो टेक्निक है वो कांस्टेंट रहती है, बट जो रिसोर्सेज है वो पूरा का पूरा हम यूज़ करते हैं। सो हेयर वी जस्ट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ wheat and cloth। So see this table, wheat. When wheat is produced 100 lakh ton, then the production of the cloth is 0. When the wheat is produced 90 lakh ton, then the cloth of the production is 1 bales। ओके, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जब हम एक
एक हमारे पास लैंड है, उस लैंड में क्या करेंगे, इवन रिसोर्सेज हमारे क्या है, रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है हमें डिसाइड करना है कि हम वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है वो दो गुड्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो है वो वीट पे लगा देते हैं, तो जब पूरा रिसोर्सेज वीट पे लगा देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कितना है, 100 लाख टन का है, और उस टाइमिंग में जो क्लॉथ है उसका प्रोडक्शन क्या है, ज़ीरो है। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिसोर्सेज का, और तो उस टाइमिंग में क्या है, जो वीट का प्रोडक्शन है जब आपका 90 है, और उस टाइमिंग में क्या है, आपका क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है वो 1 बेल्स है। देन उसके बाद से फिर जो है हम रिसोर्सेज को और जो है और उसको बड़ी क्वांटिटी पे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो जो वीट का प्रोडक्शन है आपका वो 70 हो जा रहा है, एंड उसके बाद से जो क्लॉथ है आपका 2, देन आफ्टर वीट प्रोडक्शन इज़ 40 एंड क्लॉथ इज़ 3। और जब हम पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज है वो क्लॉथ पे फोकस कर देंगे, यानी क्लॉथ पे लगा देंगे, तो क्लॉथ जो है हमारा कितना आएगा, हमें 4 लाख बेल्स के अकॉर्डिंग 4 लाख बेल आएगा, और जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ईजिली वी कैन इम्प्लाई इन अ ग्राफ। हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ए बी सी डी, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जितनी भी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कितने लेवल पे जो है उसकी पॉसिबिलिटी है, वो जो है हम इस फिगर में शो ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट और आता है, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो अटेनेबल का मतलब होता है फिजिकल, एंड नॉन अटेनेबल का मतलब होता है अनअटेनेबल का मतलब होता है नॉन फिजिकल। तो जितने भी पॉइंट्स हमें पीपीसी कर्व पे दिख रहे थे वो सारे कैसे पॉइंट्स थे, आपके अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट थे। इट मीन्स वहाँ पे फिजिकली वर्क हुआ है, रिसोर्सेज का जो है वो फुली यूज़ हुआ है, और जो आपका एक पॉइंट था विच इज़ आउटसाइड ऑफ द पीपीसी कर्व इज़ नोन एज द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई भी जो फिजिकल जो भी रिसोर्सेज है वो नहीं यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। Then we will study what is the shifting and rotation of production possibility curve। कब हमारा जो है जो पीपीसी कर्व है वो आपका शिफ्ट होता है, और कब जो है वो आपका रोटेट होता है। चेंज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज हमारी इंक्रीज करती हैं, इट्स नॉर्मली जो पीपीसी कर्व है वो आपका क्या होता है, राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। जब भी रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं तो पीपीसी कर्व आपका राइटवर्ड में शिफ्ट हो जाता है, और जब रिसोर्सेज जो हैं आपकी रिड्यूस होती हैं तो पीपीसी कर्व क्या होता है, आपका लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। व्हेन चेंज इन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज क्या है, हमारे रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज सेम है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट होगा। क्यों रोटेट होगा, देखिए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का चेंज करेंगे तो वो हमेशा हम क्या करेंगे, एक ही गुड के लिए टेक्नोलॉजी का जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी का चेंज करते हैं तो इट मीन्स गुड एक्स क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो पीपीसी कर्व इज रोटेट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट B1। नाउ ऐसे हम क्या देखेंगे, ऐसे हम क्या करते हैं, अगर गुड वाई का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर देते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन कर्व जो पॉसिबिलिटी कर्व है आपका पीपीसी है वो पॉइंट ए से A1, इट मीन्स जो गुड का जो भी प्रोडक्शन है, वाई गुड जो है उसका प्रोडक्शन है, उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा इजीली। और जब हम टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो उस टाइमिंग में क्या होगा, उस टाइमिंग में जो है आपका दोनों जो है वो प्रोड्यूस जो इंक्रीज होगा, उसका दोनों का आउटपुट इंक्रीज होगा, गुड वाई का भी और गुड एक्स का भी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट ना हो करके पीपीसी कर्व आपका क्या हो जाएगा, पीपीसी कर्व आपका रोटेट ना हो करके वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। So there are 2 basic properties or characteristics of a PPC. First one is the curve slope downward.
स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका सिंपली है कि जब आप क्या करेंगे, दो गुड्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं, गिवन रिसोर्सेज है और दो गुड्स को आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स जो एक गुड है वो सेक्रीफाइस होगा, तभी क्या होगा, आपका दूसरा गुड जो है वो इंक्रीज होगा। इस वजह से क्या होता है, जो पीपीसी कर्व है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड होता है, वो कर्व होता है वो किसकी तरफ होता है, वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। एंड सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आपका ओरिजिन से ही कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव का मतलब हो गया कि एक जो प्रोडक्ट है वो आप क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स एक प्रोडक्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लाइक अगर गुड एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, वो अपने पॉइंट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है। सो यहाँ पे भी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जो है बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, जस्ट लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो देन व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या देखेंगे, इजीली हम वही चीज़ देखेंगे जब हम टू गुड्स को कंबाइन कर रहे हैं तो एक गुड क्या होगा, एक गुड जो है उसको सेक्रीफाइस करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे गुड्स को क्या कर सकते हैं, ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। सो हाउ टू प्रोड्यूस में हम यहाँ पे टेक्निक को देखेंगे कि कौन सा टेक्निक को हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, विच इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सेकेंड वन इज़ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एंड हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, तो जब हम रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो पीपीसी जो है हमारा क्या होगा, देखिए जो ए से लेकर के बी तक है, यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं इंडिकेट लोअर लेवल। ये हमें क्या कर रहा है, लोअर लेवल दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या है, जो सी से डी तक हमारा कर्व शो कर रहा है, इसमें हम कह रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन जो है, ज़्यादा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ए टू बी। तो इसमें जो है हमें जो सी से डी तक का कर्व है इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और ये किसके लिए प्रोडक्शन हो रहा है, ये रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। एंड जो ए से बी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जो पुअर पीपल है, जो पुअर पीपल है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए हम ये जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट क्या है वो बहुत ही कम हो रहा है। देन फोर्थ वन इज़ द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो है कोई भी रिसोर्सेज जब हम उसको यूज़ करते हैं तो इट मीन्स क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा उसका क्या हो रहा है, हमें आउटपुट जो है वो पूरा का पूरा हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर इसके अंदर में कोई भी पॉइंट, अगर इसके अंदर में हम पूरा रिसोर्सेज अगर यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इफ़ देयर हैज़ एनी पॉइंट अंडर दिस कर्व इट मीन्स देयर हैज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इसके अंदर में कोई भी पॉइंट लेकर के आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो है वो पूरे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज़ द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगा तो देखिए आपका क्या है, जब रिसोर्सेज हमारे ग्रोथ कर जाएंगे इट मीन्स जो आउटपुट है वो भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा।